Hello student, good evening one and all. Today lecture number 11, chapter number 4, laws of motion. Yesterday we derived the formula for work energy theorem, that is work done is equal to change in kinetic energy, and we also derived the formula for power, which is the rate of doing work upon time. So on the basis of work energy theorem, right, we are going to solve some numerical based on that. So let's begin with the first numerical. I will give the printed copy of this question bank, जो भी क्वेश्चन बनाया मैंने उसके मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आप जस्ट रेफर इट so that I don't have to write on the board. Okay, so I will just write the given quantities. Fine. So let's begin. First numerical, which is given in the textbook, page number 76. Textbook unsolved. Question number 3 का ninth numerical है, page 76 page पे. Now first numerical, while decreasing linearly from 5 Newton to 3 Newton, a force decreases from 5 Newton to 3 Newton. इतना फोर्स कम हो रहा है. But when the force decreases 5 Newton to 3 Newton, a force displaces an object from मतलब displaces an object from 3 meter to 5 meter. Calculate the work done by this force during this displacement. So what we have to calculate? To calculate work done during this displacement. तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है. लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस. ग्राफ इज गिवन. फोर्स is along y axis, displacement along x axis, now let's mark with this will be 1 2 3 4 5 6 and so on. In this side 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 and 6. okay, let's mark the point. अभी यहाँ पे देखो फोर्स कहाँ से कहाँ कम हो रहा है, 5 न्यूटन टू 3 न्यूटन, तो 5 न्यूटन, बट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3, तो 3 का कम करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, 3 का करस्पॉन्डिंग, सो दिस पॉइंट. ओके, सो लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट इज ए. ओके, नाउ लेट्स मार्क द 5 मीटर corresponding force was, look at this point, this is B point, and what they have mentioned, the force decreases linearly मतलब downward direction. This is what linear force. So this is what the diagram we can predict. Okay, so this point, let this point is B, this point is E, this point is C, this point is D. So ABCD. Now here the formation of trapezium. Geometrical figure कौन सा बना है, trapezium. तो यहाँ पे क्या निकाल हमको, we have to find the work done. तो work done क्या है, work done is equal to, अभी यहाँ पे कोई ऐसा कर्व नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है. जब भी ग्राफ ऐसा लीनियरली डिक्रीज होता है, लीनियरली बढ़ता है, तो वॉट एवर द एरिया इनक्लोज बाय दैट फिगर, दैट एरिया इनक्लोज विल बी द वर्क डन. इन द आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, अगर कर है, इफ द कर इज लाइक दिस, या ऐसे कर है, तो वो केस में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन लेना है. रिमेंबर, इन दैट केस वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सीधा फॉर्मेशन ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म हुआ है, राइट.
So work done is equal to area of trapezium. Area of trapezium. ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ट्रेपेजियम. We know formula of area of trapezium. What is the formula? That is the sum of the parallel side multiplied by height. Okay, it is 1 upon 2. So area is equal to 1 upon 2. The sum of parallel sides multiplied by perpendicular distance between the two parallel sides. Okay, perpendicular distance between parallel sides. This is the formula. Okay, so let's find the area of trapezium here. So work done is equal to 1 upon 2. The parallel sides are AC plus DE, AC plus DE multiplied by, what is the distance between these two? CD or BE? It is CD. So 1 by 2. AC is how much? 5 plus 3. So 5 plus 3 multiplied by CD कितना है? CD is 5 minus 3. 5 minus 3. CD is this. Let this point be O. So ये 5 में से 3 माइनस करने का, so you will get CD. Very simple numerical. 1 upon 2 multiplied by 8 multiplied by 2. 2 get cancelled and work done measured in joule. Okay, so work done during the displacement from 3 meter to 5 meter will be 8 joule. So this is the answer. So take a screenshot. So next begin with the second numerical. Now the next numerical is the position dependent force. Position dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton. This force always measured in Newton. SI unit of force is Newton. Acts on a small body of mass 2 kg. So mass is given, mass is equal to 2 kg and displaces from initial position is given x is equal to 0 meter to x is equal to 5 meter. Calculate the work done by the force. So calculate the work done by the force. अब यहाँ पे इंडी लिमिट दिया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दिया है, मास दिया है. ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दी वर्क डन. ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे मास हमको नहीं लगने वाला है, देयर इज नो नीड ऑफ मास हियर. सो वी विल यूज द इंटीग्रेशन फॉर्मूला दैट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर एफ into dx. Okay, here the xi initial position to xf final position, displacement of particle, initial displacement particle, final displacement particle, and that limit is given. So let's substitute the value of f here. So here x is equal to 0 to x is equal to 5. Okay, put the value of f here.
7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे कि अभी हर टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करने का है, तो इसको इंडिविजुअली सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो लेट अस सेपरेट दिस इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू डी एक्स 0 to 5 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स लिमिट 0 to 5 प्लस 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू डी एक्स from 0 to 5. Just separate out, very simple. Okay, now after this we know the formula for integration. क्या formula हमने कल derive किया था? Integration of x raised to n into dx can be written as x raised to n plus 1 power x raised to, यहाँ पे एक बढ़ाने का, सिर्फ जो इंडाइस जो पावर वो एक से बढ़ाने इंटीग्रेशन अपॉन जो नंबर यहाँ पे वही लिखने का n plus 1, दैट्स ऑल। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे 7 तो कॉमन है, 7 बाहर आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। सो इंटीग्रेशन क्या है, इट इज़ एंटी डेरिवेटिव, तो जो डेरिवेटिव है डी को निकाल देगा और सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ एक्स। सो इट कैन बी रिटन एज 7x, लेकिन लिमिट लेना पड़ेगा 7x 0 to 5 माइनस 2 times what is the integration of x by using this formula, it can be written as x square upon 2 limit 0 to 5 plus 3 integration of this x raised to cube upon 3 0 to 5. I hope you all have understood this step. क्लियर कट स्टेप है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। whenever you are putting the value of x, put the upper limit first माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 7 तो कॉमन है, 7 बाहर आ जाएगा। वर्क डन W इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दैट विल बी 5 माइनस 0, ओके, माइनस 2 इंटू ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है उसको 2 को भी बाहर निकाल देता हूँ मैं, 1/2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स इंटू जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमेरल है, वो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 डिवाइड बाय क्या आएगा, 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सो सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। सेम फार्मूला पे काफ़ी न्यूमेरिकल है, वही आपको अब समय भी करना है। तो लेट अस सॉल्व दिस। W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 माइनस 0 क्या आएगा, 5 माइनस 0 5 आएगा, 7 इंटू 5 35 माइनस 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 25 प्लस 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, हाँ यहाँ पे 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब क्या है 125, तो 125, 0 का क्यूब 0 आएगा। ओके, तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। W इज इक्वल टू 35 माइनस 25 प्लस 125, यहाँ पे 35 माइनस 25 कितना आएगा, पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये 10 आएगा, 10 प्लस 125, सो इट इज 135 एंड द आंसर इज 135 जूल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, यस करेक्टेड। Now the next sum, numerical number 3, which is given in the textbook, unsolved है textbook में। So textbook unsolved, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं इसको। पे 10 नंबर का है,
page 76. Okay, page 76. Now here also force is given. The variation of force variable है, variation of force in a certain region is given by, F is given, force is given, that force is 6x square minus 4x minus 8. Okay, then it displaces an object from, displacement di, displaces an object from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter. बहुत सिंपल है. Again here we have to find the work done. Find the work done. Find the work done. Okay. जो पहला वाला प्रॉब्लम था प्रीवियस वैसे ही सेम टू सेम है. ओके, सो लेट्स फाइंड द वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2. ओके, दिस इज x1, दिस इज x2, x1 to x2 वेक्टर f डॉट dx. ओके, हमेशा याद रखना जब भी इंटीग्रेशन आप लिखते हो तो f इज द फंक्शन ऑफ x, f इज द फंक्शन ऑफ x. यहाँ पे अगर x है तो ये भी x1 x2 रहेगा, ये याद रखना. अगर यहाँ पे dt है, टाइम है, इफ इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन यहाँ पे जो लिमिट रहेगा वो टाइम रहेगा. अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है s है, ds है, तो यहाँ पे भी s1 s2 रहेगा. तो ये बात का आपको ख्याल रखना है, राइट. वो अलग फंक्शन नहीं होगा. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स हियर. दिस विल बी x इज इक्वल टू 1 to x is equal to 2 upper limit and lower limit. So force is 6x square minus 4x minus 8 whole bracket into dx. Okay, now w is equal to अभी इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फाइंड कर दी इसका. 6 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx where 1 to 2 minus 4 integration x into dx limit 1 to 2 minus 8 इंटीग्रेशन dx 1 to 2. बहुत सिंपल है. एक्चुअली यहाँ पे dx है लेकिन ओके 8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx. सो लेट अस फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला x रेज टू 3 अपॉन 3, 6 इंटू x रेज टू 3 अपॉन 3, लेकिन यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा 1 to 2 माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस x स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2 माइनस 8. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव d निकल जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो इट विल बी x 1 to 2. ओके फाइन. यहाँ तक कोई डाउट है? बहुत सिंपल है. व्हेन यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको आदत हो जाएगी. सो w इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में जो भी है नंबर वो बाहर आ जाएगा. तो दिस कैन बी रिटन एज 6 अपॉन 3 अपर लिमिट x क्यूब 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ओके, माइनस 4 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 8 इंटू अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1. दैट्स ऑल. आई होप यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल है. तो लेट अस कैलकुलेट दिस. 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, जितना हो सके उतना मिनिमाइज करने कैलकुलेशन को. यू हैव टू रिड्यूस मिनिमाइज द टर्म्स, लोएस्ट इनटू टर्म्स. सो w इज इक्वल टू 2 अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 2 का क्यूब कितना है 8, 8 माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस 1 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1 कितना होगा 1. सो w इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 8 माइनस 1 7, सो 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1 कितना होगा 3 माइनस 8
So W is equal to 14 minus 3 to the 6 minus 8. So W is equal to, ये क्या आएगा 14 minus 14, the work done is 0. Work done is 0 joule. This is the answer for this. So take a screenshot. अगला सम लेते हैं 4 नंबर का। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपको डाउट होगा, बहुत सिंपल है, इसके जैसे हमने प्रीवियस सॉल्व किया था। अभी 4th न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4, a particle moves along a parabolic path, ओके। पैराबोलिक पाथ पता है ना आपको, मैंने पैराबोला में सिखाया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये पैराबोलिक पाथ है, ओके, ये पैराबोलिक पाथ है। y इज इक्वल टू, पैराबोलिक पाथ y इज इक्वल टू 2 पर मीटर x स्क्वायर, 2 पर मीटर x स्क्वायर फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 वो इक्वल टू 0, 0, ये ओरिजिन दिया है, टू द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 2 मीटर, ओके। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिया है, वेक्टर F इज इक्वल टू 3 न्यूटन पर मीटर, y I कैप प्लस 6 न्यूटन पर मीटर x j कैप, ये फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन, तो क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, W क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट y दिया है, y कैन बी रिटन एज, सो y इज इक्वल टू गिवन डेटा, even y is equal to 2 meter per x square, so this can be written as simply 2x square, क्योंकि पर मीटर क्या है यहाँ पे यूनिट है, तो y को हम कैसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। और यहाँ पे जो dy है, तो इसका डेरिवेटिव अगर लिया, तो क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू, और dy by dx इज इक्वल टू 4 डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 into 2 4, सो दिस कैन बी रिटन एज dy इज इक्वल टू 4 times dx, dy डेरिवेटिव ऑफ y, यहाँ पे क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो 2 to the 4 into dx, ओके, 4x dx आएगा, 4x dx, डेरिवेटिव भी 4x dx, x का भी डेरिवेटिव आएगा, सो dy कैन बी रिटन एज 4x dx। नाउ इनिशियल पोजीशन दिया है 0 0, फाइनल पोजीशन दिया है P 2/2। नाउ वेक्टर F कैन बी रिटन एज, वेक्टर F इज इक्वल टू 3y I कैप प्लस 6x j कैप, ओके, दिस इज द फोर्स। नाउ दिस फोर्स इज एनालॉगस टू, हम इसको कंपाउंड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। सो अगर इसको ये फॉर्म में लिखा तो हाउ कैन वी राइट दिस कैन बी रिटन एज, सो एफ इज इक्वल टू 3y I कैप प्लस 6x j कैप, ओके। द इनफाइनेटसिमल एलिमेंट ऑफ वर्क डन इज इनफाइनेटसिमल वर्क डन, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है dy वो छोटा है, राइट। तो इनफाइनेटसिमल वर्क डन इज इक्वल टू dw कैन बी रिटन एज fx dx प्लस fy dy, इसके दोनों कंपाउंड की वजह से जो वर्क डन होगा वो यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। सो fx dx प्लस fy dy,
So let us substitute this dw is equal to, so fx कितना है, comparing this, तो fx is equal to 3y, fx is equal to 3y into dx, okay, plus fy कितना है, fy is 6x into dy, ओके। तो अभी यहाँ पे dx और dy का वैल्यू डालेंगे, राइट, dy का वैल्यू डालेंगे, dy का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ 4x dx, तो सब x में मिल जाएगा आपको। सो dw इज इक्वल टू 3 इंटू, अभी y यहाँ पे दिया है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सो सब्स्टिट्यूट इज वैल्यू ऑफ y हियर 2x स्क्वायर इंटू dx प्लस 6x इंटू dy कितना है 4x dx, so this can be written as, I will write here, so infinitesimal work done dw is equal to 3 to the 6x square dx, 6x square dx plus 6 to 4 the 24 x square dx. So this will be dw is equal to 30 x square dx. Okay, this is the x square dx. अभी ये dw मिला, लेकिन हमको निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? If we got the infinitesimal small work done, we have to take the integration. Okay, to find the total work done, to find total work done, let the equation 1, integrating equation 1 we get, क्या मिलेगा हमको, w is equal to integration of dw which is equal to integration of 30x square dx, okay, and limits are, starting limit कितना है 0, maximum कितना है 2, okay, so this can be written as 30x cube upon 3, upper limit 2, lower limit 0, so 30 upon 3, 3 ही बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, सो दिस विल बी आफ्टर सॉल्विंग दिस 10 इंटू 8, ओके, सो 10 इंटू 8 मतलब क्या आएगा, इट इज़ 80 जूल, सो 80 जूल इज द आंसर, सो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल वर्क डन 80 जूल, ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो यू हैव फिनिश 4 न्यूमेरिकल, अभी 5वां न्यूमेरिकल लेते। Fifth numerical, a particle of mass 12 kg, mass of particle is 12 kg, mass of a particle 12 kg is acted upon by a force दिया है, force acting which is equal to 100 minus 2x square, 100 minus 2x square, where F is in न्यूटन, वो न्यूटन में फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है यूजुअली, कभी कभी डाइन में देते हैं, x is in meter, displacement is in meter, x is in meter. Now what they are asked to find, number 1, calculate the work done by the force, by the F force in moving x1 is equal to 0 to x2 is equal to minus 10 meter, 0 to minus 10 रिवर्स आ रहा है, राइट, what will be its speed, second, speed at x is equal to 10 meter if it start from rest,
if it start from rest. Okay, if start from rest, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो u जीरो आएगा यहाँ पे. ओके, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. नाउ सो हियर लेट्स फाइंड द फर्स्ट क्वांटिटी, दैट इज द वर्क डन. तो पहला क्वांटिटी निकालेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स. ओके, एंड वी नो दैट हियर द लिमिट दिया है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन है. ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ x सफिक्स i, x सफिक्स फाइनल, that is f into dx. Okay, f into dx. Put the value of f here. So it can be written as lower limit कितना है 0, अपर लिमिट कितना है -10 है. यहाँ पे -10 है. ओके, क्योंकि +10 नहीं -10 है, तो जो दिया है वही लेना है, -10. f का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 100 माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx. अभी इंटीग्रेट करना है इसको. इंटीग्रेट करके लेट अस फाइंड w इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंडिविजुअल करने का 100 बाहर आ जाएगा, dx 0 to -10 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट -10. ओके, सो विच इज इक्वल टू w इज इक्वल टू क्या आएगा 100, यहाँ पे x आएगा 0 to -10 -2 ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा x क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट -10. बहुत सिंपल है, एक एक स्टेप सॉल्व करते जाने का, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको. नॉट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. घाई मत करना, घाई किया तो जोर हो जाएगा. सो W इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग, दैट इज 100 इंटू ब्रैकेट. अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है -10 -0 -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, -10 का क्यूब -0 का क्यूब. ओके, सो W इज इक्वल टू 100. अभी देखो यहाँ पे 100 इंटू -10 कितना आएगा, -1000 -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 का क्यूब कितना आएगा, -10 का क्यूब. द ऑड पावर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट. ऑड पावर अगर नेगेटिव का ऑड पावर कहेगा नेगेटिव आएगा, तो -10 का क्यूब कितना आएगा, -1000, तो -1000. Okay, so this can be written as -1000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू 1000. अब यहाँ पे 1000 को कॉमन निकालेंगे, तो 1000 को बाहर निकालते, -1 + 2/3. सो दिस विल बी 1000. ये कितना आएगा, -3 + 2 -1/3 -1/3, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, W इज इक्वल टू -333.3 जूल. तो नेगेटिव वर्क डन. ओके, सो दिस इज व्हाट द वर्क डन फ्रॉम द पहला पार्ट हुआ. अभी हमको निकालना है, स्पीड निकालना है, राइट. Why the minus sign here? The negative sign indicate that force is opposite to the displacement. Negative sign इसलिए है कि opposite direction में. अभी उन्होंने क्या दिया है, -x = 0 to -10 मीटर. Calculate work done by the force in moving the particle from. Okay, सेकेंड पार्ट की जरूरत नहीं है. ओके, व्हाट विल बी स्पीड एट x = 0 10 मीटर. ओके, तो अभी यहाँ पे स्पीड अगर 10 मीटर पे स्पीड निकालना है, तो इट इज़ इसेंशियल दैट, जरूरी है कि हमको 10 मीटर पे वर्क डन कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, राइट. वो वर्क डन निकाला तो वी कैन फाइंड द स्पीड, बिकॉज वी कैन यूज़ द वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड द स्पीड. ओके, तो यहाँ पे हमने -10 मीटर पे
एक्स जी इक्वल टू -10 मीटर पे वर्क डन निकाला, वी गॉट माइनस 3,333.3 यहाँ पे ये मिला हमको वर्क डन। अभी वर्क डन फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर पे। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ लिमिट यहाँ पे अलग रहेगा, बाकी आज यूजुअल वही रहेगा। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So let us find the work done. Second part, work done from okay x is equal to 0 to x is equal to 10 मीटर। ये क्यों निकाला हमको? यहाँ पे स्पीड निकाला है ना, स्पीड निकालना तो वर्क डन मालूम होना चाहिए, राइट। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 10 f into dx which is equal to 0 to 10. This can be written as 100 minus 2x square. Then W is equal to 100 integration dx 0 to 10 minus 2 integration x square into dx 0 to 10 which is equal to क्या आएगा 100 x upper limit 10 lower limit 0 minus 2 into bracket x square x cube upon 3 upper limit 10 lower limit 0। then वर्क डन इज इक्वल टू सेम वही आएगा आंसर, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। 100 इंटू 10 माइनस 0 माइनस 2/3 इंटू 10 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सो W इज इक्वल टू दिस विल बी 1000 माइनस 2/3 इंटू 1000। ओके, सो हियर वी कैन राइट 1000 को कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 100/3 or 1000/3 which is 333.3 joules. So we got here plus. ओके, अभी हमको निकालना है स्पीड। सो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वी हैव टू फाइंड अ स्पीड एट x इज इक्वल टू 10 मीटर। टू फाइंड स्पीड एट x is equal to 10 meter. Okay, so by using work energy theorem, क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दैट वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बॉडी वॉज एट रेस्ट। ओके, तो जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक 0 आएगी ना। सो W इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, हाफ एम यू स्क्वायर, बट u इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है? वी स्क्वायर फाइंड करना है, वी निकालना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वर्क डन अपॉन मास विच इज इक्वल टू 2 इंटू वर्क डन कितना है 1000 अपॉन 3 इंटू मास कितना है 1 बाय मास इज 12। ओके, सो 12 1 जा 12 6 जा, तो 1000 अपॉन 9 सॉरी 6 3 जा 18 या 1000 अपॉन 18। तो इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर, द फाइनल आंसर विल बी it will be 55 point v square is equal to 55.56। ओके, लेकिन इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट आई विल राइट हियर। ओके, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 55.56, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसका लॉग टेबल से आप निकालो, यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल द आंसर इज 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.45
4 meter per second. This is the speed of the particle at x is equal to 10 meter. So just take a screenshot. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल थे सातवां न्यूमेरिकल है, 6 न्यूमेरिकल लेते, 5 हो गए, छठा न्यूमेरिकल। सिक्स न्यूमेरिकल, a heavy rope of length L, length of the rope is given L, and mass capital M, length of rope that is L, okay, and mass capital M, mass of the rope, mass capital M, okay, that is M, mass of the rope is capital M, mass of rope is capital M, is slowly pulled at constant speed over the edge of table. तो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द टेबल, एक साइड है टेबल का, ओके, और यहाँ पे जो रोप है, तो रोप इज लाइक दिस, हेवी रोप है, सस्पेंडेड हो, ये रोप है, ओके। तो टोटल लेंथ कितना है रोप का, द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द रोप, इधर ऐसे खींच रहे हैं उसको, इट इज पुल्ड दिस वे, तो रोप इज पुल्ड दिस वे, इधर खींच रहे हैं, फोर्स इधर लगाया दिस साइड, लेफ्ट साइड में, ओके। तो टोटल लेंथ कितना है रोप का, एल है, स्लोली पुल्ड अप एट अ कांस्टेंट स्पीड ओवर द एज ऑफ टेबल बाय फोर्स एफ अलॉन्ग द टेबल सरफेस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द रोप। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, सपोज मान लेते कि ये जो रोप खींचा है यहाँ पे टेबल के ऊपर एक्स है, इफ यू कंसिडर द लेंथ ऑफ द रोप ओवर द टेबल इज एक्स, टोटल लेंथ कितना है कैपिटल एल, द टोटल लेंथ इज कैपिटल एल। तो अबव द टेबल के सरफेस पे जो फ्रिक्शनलेस टेबल है, कितना लेंथ खींचा है, एक्स माना, एज्यूम किया हमने, लेट द लेंथ ऑफ द रोप ऑन द टेबल इज एक्स, लेट द length of rope, okay, on the table, on the frictionless table be small x। तो अगर ये लेंथ x है, हाउ मच लेंथ ऑफ द रोप हैंगिंग बिलो द टेबल, टेबल के नीचे कितना लटक रहा है वो निकालना है, राइट। तो दिस टोटल लेंथ इज कैपिटल एल, दिस लेंथ इज x, सो दिस विल be L minus x. Can I write like this? It is L minus x. The length of rope hanging below the table is L minus x. Length of the rope over the table is x. Length of the rope hanging is L minus x. Okay. So, तो ये टेबल है और ये रोप है, यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, W बाय फोर्स, टू कैलकुलेट वर्क बाय F, वर्क डन बाय फोर्स। नाउ टू फाइंड वर्क डन, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, हमारा जो फॉर्मूला हो, तो फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये जो लेंथ हो दैट विल बी वेट ऑफ द रोप हैंगिंग, weight of the rope hanging. So let mass per unit length of rope will be, टोटल मास कितना है कैपिटल एम, टोटल लेंथ कितना है कैपिटल एल। तो हाउ कैन वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर मास पर यूनिट लेंथ, सो इट इज कैपिटल एम per unit length, okay।
Then what is the weight of the rope hanging? Mass per unit length of rope hanging. Total. Okay. Then the length of rope hanging. Length of rope hanging. Okay. Below the table will be. तो ये कितना है? मास पर यूनिट लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना है? L माइनस एक्स, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज L माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M अपॉन L. दिस इज द मास ऑफ द रोप हैंगिंग फ्रीली सस्पेंडेड. यहाँ पे जो सस्पेंडेड है ये रोप का लेंथ, सॉरी हाँ, ये रोप का लेंथ कितना हुआ? दिस मच. सॉरी, मास ऑफ रोप आएगा. इट इज मास ऑफ रोप. सॉरी, मास ऑफ रोप हैंगिंग बिलो टेबल इज L माइनस एक्स इंटू कैपिटल M बाय L. मास से मल्टीप्लाई करें ना यहाँ पे. ओके फाइन. देन वेट ऑफ द रोप हैंगिंग. अब ये तो मास है, तो वेट कितना होगा? वेट को क्या करते हैं हम लोग? वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर जी, स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करना है. तो वेट ऑफ द रोप हैंगिंग इज L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय M अपॉन L इंटू स्मॉल जी, mg. ओके, दिस इज द. ये अगर लिखने को आ गए ना, आगे का काम आपका ईजी हो जाएगा, क्योंकि इतना फोर्स लगेगा उसको ऊपर खींचने के लिए, राइट, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो, राइट. सो L माइनस एक्स. So force required is F. So force required is capital F is equal to कितना आएगा? उसका वेट इतना L माइनस एक्स इंटू mg अपॉन L, mg अपॉन. सो विच वैरीज विथ x. ओके, सो अभी वर्क डन निकालना है हमको. द वर्क डन इज F इंटू डी एक्स. So let us find the work done. So work done is equal to integration F into dx, right. लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या आएगा? द लेंथ ऑफ द रोप पहले यहाँ पे था, धीरे धीरे उसको खींचा 0 to L. द लिमिट इज 0 to L. 0 to L. Okay, so it can be written as x is equal to 0 to L. X is equal to L. So substitute the value, integration 0 to L minus x into mg upon L into dx. Okay, so यहाँ पे अभी इंडिविजुअल आएगा, ये सब mg अपॉन एल को बाहर निकालेंगे. W इज इक्वल टू mg अपॉन एल इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन L माइनस एक्स इंटू डी एक्स 0 to L. दिस वे वी कैन राइट, क्योंकि mg अपॉन एल क्या है, वो पूरा कॉन्स्टेंट आएगा, बाहर आ जाएगा. तो W इज इक्वल टू m इंटू जी अपॉन L. दिस इज नॉट 9 ना, ये 9 नहीं, दिस इज G. ओके, टेक इन टू कंसिडरेशन. टू ब्रैकेट इंटीग्रेशन L इंटू डी एक्स 0 to L माइनस इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स 0 to L. So W is equal to m इंटू जी अपॉन L. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? L इंटू एक्स, L बाहर आ जाएगा, इंटू L x 0 to L माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to L. So W इज इक्वल टू L कट हो जाएगा, mg L माइनस 0 माइनस
माइनस इसका क्या आएगा एल स्क्वायर, अब 2 भी बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सो W इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी इंटू एल माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एम जी एल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो एम जी एल को अगर कॉमन निकाला तो W इज इक्वल टू एम जी एल, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस L/2 विच इज इक्वल टू एम जी 2 माइनस L/2। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एल इंटू एल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, एल इंटू एल माइनस स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, एम जी एल स्क्वायर माइनस एल, ओ सॉरी ये कट नहीं होगा, ये पूरा मल्टीप्लाइड है, तो दिस विल बी एल एज इट इज़, सॉरी यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, तो यहाँ पे एम जी अपॉन एल आएगा, और ये वो जो एल है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एल विल बी आउटसाइड, तो यहाँ पे वापस एल आएगा, यहाँ पे एल आएगा एल स्क्वायर, सो थोड़ा सा करेक्शन कर लो, सो दिस विल बी W इज इक्वल टू कैपिटल M आएगा, कैपिटल M G अपॉन L इंटू ब्रैकेट L स्क्वायर माइनस 1/2 L स्क्वायर। ओके, तो L स्क्वायर को बाहर निकाल देते, तो W इज इक्वल टू कैपिटल M G अपॉन L इंटू, अभी L स्क्वायर बाहर आएगा, L स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, तो सॉल्व करने के बाद ये के L निकल जाएगा अभी, तो दिस इज एम जी एल इंटू हाफ, तो द आंसर इज एम जी एल अपॉन 2, तो दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एल। तो ये फाइनल आंसर है, सिर्फ नथिंग, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन फाइंड करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है, कोई डिफिकल्टी नहीं। ओके, आप भी यहाँ तक एक बार फॉर्मूला लिख लिया, यू कैन डू यूर सेल्फ। ओके, चलो we can have one more sum if possible. So 7 numerical, liquid drop of mass 1 gram, mass of liquid drop, mass of liquid drop that is small m is 1 gram which is 10⁻³ kg। लिख लेने का पहले, बाद में वो फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो पहले ही कन्वर्ट कर लेने का इसको, मास ऑफ लिक्विड ड्रॉप 1 ग्राम दैट इज 10⁻³ kg फॉल्स फ्रॉम अ क्लिफ 1 किलोमीटर हाई, मतलब एक ऊपर क्लिफ है 1 किलोमीटर हाई, सो the height of cliff h is equal to 1 kilometer which is 10⁻³ meter। ओके, it hits the ground, ऊपर से लिक्विड ड्रॉप गिर रहा है ग्राउंड पे, at the bottom of the cliff with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड, speed of liquid drop, ओके, v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और g कितना आएगा फिर, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ पे 10 लेना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि वो जो ड्रॉप आएगा उसको कुछ तो रेजिस्टिव फोर्स रहेगा, वो सीधा आएगा ही नहीं, बिग बायंड फोर्स विल एक्सर्ट ऑन द ड्रॉपलेट, तो वो निकालना है, राइट. सो दिस न्यूमेरिकल कैन बी आस्क्ड फॉर 3 marks. So let us assume that a liquid drop initially at rest. Okay, so initially liquid drop is at rest. तो u क्या आएगा, 0 आएगा, will be 0 meter per second, right. So that the initial kinetic energy also 0. So initial kinetic energy will be 0. तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जब ड्रॉप हाइट पे होगा तो उसको कौन सी एनर्जी प्राप्त होगी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस initial kinetic energy. So delta ke is equal to half mv square minus 0. So which is half mv square. क्या आएगा, half mv square आएगा. Okay, so let us find this delta ke. So delta ke is equal to 1/2 mass of the drop is 10 raised to minus 3 into velocity कितनी 50 का स्क्वायर. So which will be 1/2 into 1/1000 multiplied by velocity 2500. तो 2 0 कट हो जाएंगे. ओके, तो ये क्या आएगा 212.5. तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 10, 1.25 जूल. सो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अभी हमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. So change in potential energy, change in potential energy. So it can be written as delta PE, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. जब ड्रॉप प्लेट नीचे आएगा, ग्राउंड पे आएगा, व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, ओके, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, 0, राइट. सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. Okay, but the final potential will be 0 minus initial potential is mgh. Okay, so 0 minus 10 raised to minus 3 into 10 into height 10 raised to 3 कट हो जाएगा. So which is minus 10 joule. Okay, so change in potential energy will be minus 10 joule. So we got this change in potential energy minus 10 joule. But work done by the resistive force, हमको निकालना क्या है, work done by the resistive force, and that work done by the resistive force, that is non conservative force. Okay, so WNC का फॉर्मूला हमने कल डिराइव किया था, work done by non conservative force, that is the resistive force. WNC is equal to sum of the kinetic energy plus sum of the change in potential energy. Okay, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 1.25 प्लस माइनस 10 जूल. तो कितना आंसर आएगा, 8 पॉइंट समथिंग, 8.75. तो माइनस 8.75 जूल इज द वर्क डन ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. दिस फार्मूला वी हैव डिराइव्ड यस्टरडे, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में मैंने ये एक्सप्लेन किया है. ओके, ठीक से आप देख लो. अभी लास्ट सम है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक लास्ट सम ले लेते. यहाँ पे क्या करना है आपको समझ में आया ना, वेरी सिंपल. इनिशियल काइनेटिक 0 आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम स्क्वायर, वी गॉट दिस. उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 minus mgh, we got this, or work done due to the
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो ये आ गया एंड देन वी गेट निगेटिव वैल्यू आएगी उसकी. फाइन. सो अभी लास्ट सम लेते, देन वी विल वाइंड अप. ओके, दिस इज द टेक्सचुअल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में दिया है. टेक्स्ट बुक अनसॉल्व नंबर है उसका 6. आप चाहे तो PDF फाइल देख सकते हो, पेज 76 पेज पे मिलेगा आपको. 40,000 लीटर्स ऑफ ऑयल. 40,000 लीटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑयल. वॉल्यूम ऑफ ऑयल that is V is equal to 40,000 लीटर. कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू मीटर क्यूब? क्योंकि लीटर जो है, लीटर SI यूनिट नहीं है वॉल्यूम का. तो जब भी आप वॉल्यूम अगर लग रहा है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम इनटू SI सिस्टम. तो SI सिस्टम में क्या आएगा? मीटर क्यूब. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीटर एंड मीटर क्यूब? ओके, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. ये आपको मालूम होना चाहिए. दिस इज व्हाट अ कन्वर्जन. 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब 1 मीटर इतना, 1 मीटर इतना और 1 मीटर इतना. अच्छा, बॉक्स बनाओ, 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बनाओ. वो 1 मीटर क्यूब बॉक्स में आपको 1000 लीटर ऑयल आएगा. ओके, इसका डेंसिटी दिया है. द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर and is pumped from an oil tanker into storage tank. ऊपर स्टोरेज टैंक ऊपर है. स्टोरेज टैंक एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर. तो हाइट दिया है 10 मीटर, हायर लेवल देन द शिप इन हाफ एन आवर. टाइम भी दिया है. टाइम इज गिवन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स के कितने सेकंड हो गए? T इज इक्वल टू 30 इंटू 60 which is 1800 second, because second is the SI unit of time. minute, hours, these are not SI unit of time. तो जब भी टाइम सब्स्टिट्यूट करना है तो वी हैव टू कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकेंड. ओके, देन G भी दिया है. G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, ये प्रॉब्लम आप वापस में पढ़ता हूँ. 40,000 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर is pumped from an oil tanker into a storage tank at a height of 10 meter, higher level than ship, in half an hour. What should be power of the pump? तो यहाँ पे क्या पूछा है? पावर. What is the power? Power is the rate of doing work. So P is equal to W upon T. What is the W? W is equal to F S upon T. What is F? F is mg. What is S? H mgh upon T. लेकिन वापस यहाँ पे मास नहीं दिया है. यहाँ पे मास ऑफ ऑयल नहीं दिया है, लेकिन वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है. सो वी कैन फाइंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. देयरफॉर मास ऑफ ऑयल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑयल इंटू डेंसिटी. वी कैन राइट लाइक दिस. सो सब्स्टिट्यूट मास ऑफ ऑयल हियर. So we can write the formula P is equal to volume into density into gravity into height upon time. So simple. At once you got this formula, we can easily find the answer. आराम से निकलेगा. अभी just substitute करना है. लेकिन whenever you are doing substitution, please ensure that all given quantities are in the same system of units. Earlier they have given the volume in liter. It is not acceptable. So we have to convert that liter into meter cube. So how much meter कितना आएगा फिर यहाँ पे कौन बताएगा? The meter cube it will be 40 meter cube. Because 1000 ये वो इसका 1 बनेगा into 40. So 40 meter cube is the volume of the oil. So 40 multiplied by density is given 0.9 which is less than water. That's why the oil is floating. Oil जो होता है, जो भी पेट्रोल डीजल जो भी ऑयल है, that always float on the water surface. Why? Its density is lower than water. तो यहाँ पे 0.9 है उसका डेंसिटी.
इंटू ग्रेविटी है 10, 10 इंटू हाइट कितना है 10 डिवाइड बाय द टाइम इज 1800, 2 जीरो कट हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज 9 1 9, 9 2 2 1 2 20, तो क्या आएगा P इज इक्वल टू इट विल बी ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो गड़बड़ हो गया. 40 इंटू 9.9, ओह सॉरी, यहाँ पे जो डेंसिटी है द डेंसिटी गिवन इन CGS यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी रहेगा. तो जस्ट राइट दिस 900 हियर. ओके, सो दिस विल बी 100 upon this 2, 9 2 so it is 2000 watt. So P is equal to 2 kilowatt. Sorry, I will write here. P is equal to 2000 watt. So P is equal to 2 kilowatt. See, the small mistake we have done earlier, that is 0.9. तो 0.9 ये क्या है, व्हाट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, CGS यूनिट है, वो नहीं चलेगा. वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर क्यूब. तो मीटर क्यूब में क्या मल्टीप्लाई बाय 1000 करने का. तो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इन SI यूनिट. आप कभी भी पेट्रोल पंप पे जाओ, डीजल वहाँ पे लिखा होता है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, डेंसिटी ऑफ डीजल 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट. और डीजल का थोड़ा ज़्यादा होगा, डीजल का कितना होगा 830 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इट इज़ रिटन दैट वेन एवर यू विल गो टू फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे देखो डेंसिटी लिखा रहता है, राइट. सो दिस इज़ द वे ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. पावर का एक ही न्यूमेरिकल है. ओके, नाउ आई विल गिव दिस क्वेश्चन बैंक. दैट्स अ क्वेश्चन आई विल गिव in printed form, so you can refer it. Okay, so आज बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक. अगला न्यू टॉपिक चालू करेंगे मोमेंटम वाला, राइट, लीनियर मोमेंटम. ओके, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, सी यू.